Yes. First of all, we need to discuss what are ions. Yesterday we discussed about atoms. Atoms are smallest particles of any type of matter, which you can say exist, may or may not exist independently. And all atoms are electrically neutral because they have equal number of protons and electrons. So number of पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो एक एटम में प्रेजेंट होते हैं दे आर इक्वल, दैट इज व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल. बट व्हेन दे कंबाइन बाय केमिकल रिएक्शंस, उस कॉम्बिनेशन के टाइम पे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स के को मतलब वो किसी और एटम को लूज कर सकते हैं. फ्यू एटम्स आर देयर व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स. तो जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है दे फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस. और जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सीड कर जाते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ प्रोटॉन से, सो दे एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज. तो ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं व्हिच आर कॉल्ड आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आयंस. क्लियर? तो आयंस आर चार्ज्ड स्पीशीज. दो टाइप के आयंस हमने देखे, केटायंस एंड एनायंस. केटायंस, positively charged ions or positively charged atoms formed by losing electron by an atom. Loss of electron अगर कर रहा है, E is for electron here. If an atom loses electron, then the charge you can say acquired by the atom will be positive, और ये positively charged जो atoms होंगे they are called as cations. और दूसरी तरफ हमारे पास है anions. Anions are negatively charged species. Negatively charged atoms formed by gain of electron. Electrons gain करता है जब कोई atom, then it acquires a negative charge. So let us start with the examples of cations and anions. Now write examples of cations first. Simplest cation is hydrogen ion. Symbol is H positive. Sodium ion. Symbol sodium Na plus 1 positive charge. So the charge which you are writing here, it means this is the valency. Valency होती है कि एक आयन कितने atoms के साथ further combine कर सकता है. If it has 1 positive charge, means it can combine with 1 atom having a negative charge. So in this way, these charges are called valency. Otherwise the definition of valency is there in 4th chapter, but थोड़ा सा आइडिया रखो, ये जो चार्ज हम यहाँ लिख रहे हैं, it is representing the valency or the combining capacity of any atom. Sodium ion, after that potassium ion, K positive, copper first ion. Copper first, you need to write here 1 in Roman number, and the second name for this is cuprous ion. Formula is Cu 1 positive. Silver ion, Ag 1 positive. Or 1 charge, these ions are sufficient for you. Next is, ये हो गया आपके मोनो पॉजिटिव केटायन, और इनको हम मोनोवेलेंट आयंस भी कहते हैं. नेक्स्ट आई एम राइटिंग संगीता मैम. चार्ज कैल्शियम. संगीता मैम. यस सर. मैम स्क्रीन. Yes, next is calcium ion. Calcium ion is Ca 2 positive charge. Here you can see the difference.
सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर आयंस हैव वन वैलेंसी. कैल्शियम पे हमने 2 पॉजिटिव चार्ज लिखा है. मींस it has lost 2 electrons, so that is why the charge is acquired by this ion is 2. ओके, तो 2 पॉजिटिव वैलेंसी सेकंड है और इस टाइप के आयंस को हम कहते हैं डाई पॉजिटिव आयन और डाइवेलेंट आयंस. कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम आयन, Mg2 पॉजिटिव, lead ion, Pb2 positive, zinc, Zn2 positive, zinc ion Zn2 positive. Have you noted down the above one? Barium ion, Ba2 positive, copper. Second, beta copper forms 2 types of ions. Copper 1 name is cuprous ion, copper 2 cupric ion. Cu2 positive. Iron also form 2 types of ions. Iron with 2 valency, iron with 3 valency. So iron second, it is also called as ferrous ion. बेटा ब्रैकेट में जो मैं लिख रही हूँ that is another name. आपकी बुक में आपको iron 2, iron 3 मिलेगा, copper 1, copper 2 मिलेगा, but according to आयुर्वेद केमिकल नेम जब आप लिखते हो उस एलिमेंट के आयंस के लिए तो with lower valency OUS is used. So ferrous here we have used as cuprous. That means the lower valency. Higher वाली जो valency है उसके लिए जैसे iron shows higher valency of 3, copper shows higher valency of 2. For that higher valency we write IC, this suffix. So for higher copper valency cupric ion, iron की जो higher valency होगी उसके लिए ferric ion will be used. So ferrous ion will be written as Fe2 positive. Next is iron 3, which is named as ferric ion. This is written as Fe3 positive. Now the charge is 3 positive. That is why here 3 is written. Okay. जो charge है that is written in Roman number if an element shows more than one type of ions. अगर वो एक से ज्यादा तरह के ions बना सकता है तो उनके लिए आपको डिफरेंस कैसे करोगे? अब दोनों ही आयरन है, आपको पता कैसे लगेगा हमने कौन सा यूज करना है? तो या तो ये नेम लिखा हुआ मिलेगा आपको फेरस फेरिक, आइदर द नेम आयरन अगर सिंपल नेम होगा तो उसके साथ रोमन न्यूमरल्स लिखे होंगे. तो बोथ ऑफ द वेज आर करेक्ट. नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम. Aluminium ion is Al3 positive. Al is the symbol of aluminium, charge है उसपे 3 positive. So these are the common ions you need to learn properly with valencies. One more you need to write is ammonium ion. Ammonium ion थोड़ा सा आपको इनसे डिफरेंट मिलेगा. फॉर्मूला है NH4 1 positive charge. This is different from all of these cations in a manner that they all have same one type of atom. सब में एक ही टाइप का एटम था. हाइड्रोजन आयन की हम बात कर रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, whatever. But here you can see 2 different type of atoms, N and H. 2 different types of atom because अमोनिया मैंने आपको कल फॉर्मूला बताया. अमोनिया गैस इज NH3. अमोनिया गैस में एक और हाइड्रोजन जब हम ऐड कर देते हैं then it forms ammonium ion, which formula is NH4
पॉजिटिव। तो दिस इज वन वैलेंसी, ये मोनोवैलेंट आयन है, बट मैंने बाद में लिखा अलग से बिकॉज इट इज डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। दीज टाइप ऑफ आयंस which have more than one type of atoms are called polyatomic ions. So you can mention here the polyatomic ion. Polyatomic ion का मतलब है the ion which is made up of more than one type of atom. That is why I have written in the definition also charged atoms or group of atoms कि different atoms का एक group भी charge carry कर सकता है in this form, and these charged particles having a group of atoms are called polyatomic ion. बाकी सारे monoatomic ions थे, अभी तक एक ही atom था उसके अंदर, एक ही type का atom था. These are called polyatomic ions. ये clear हो गया आपको अमोनियम आयन? अभी आपको केटायन में एक ही पॉलीएटॉमिक आयन करना है, बट एनायंस में बहुत वैरायटी है पॉलीएटॉमिक आयंस। मोनोएटॉमिक तो यही है, एक एक एटम वाले सिंगल, ऑल दीज आर मोनोएटॉमिक आयंस। वैलेंसी के बेस पे इनके नेम्स कह सकते हो आप मोनोवैलेंट। वैलेंसी के बेस पे जब हम टाइप्स डिसाइड करते हैं तो इफ द चार्ज इज ओनली ऑफ प्लस वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आयंस का जो टाइप होता है मोनोवैलेंट आयन। मोनो मींस वन, वैलेंट मींस चार्ज। डाइवैलेंट आयन टू वैलेंसी, ट्राइवैलेंट आयन 3 चार्ज होगा उस पे, टेट्रावैलेंट होगा तो 4 चार्ज होगा, बट जनरली टेट्रावैलेंट आयंस आपको यहाँ केटायंस में कम ही मिलेंगे, क्योंकि केटायंस इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना इट्स not an easy task for atom, it cannot lose 4 electrons. Next we'll discuss about the anion. ठीक है, हम पहले वही anion में लिख रही हूँ जो मोनोएटॉमिक है, जिसमें एक एक ही टाइप का एटम है। हाइड्राइड आयन, H नेगेटिव। अब हम नेगेटिव चार्ज की बात करें बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, सब पे नेगेटिव चार्ज। ऑल एनायंस विल हैव वन थिंग कॉमन, that they are negatively charged and they have extra electrons gain किए हुए उन्होंने। हाइड्राइड आयन इज H नेगेटिव। मैंने आपको कल भी बताया हाइड्रोजन इज a unique element in this manner that it can form both ions, cation as well as anion. जनरली केटायंस आपने देखा होगा सारे मेटल्स हैं, कॉपर, आयरन, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम, ऑल दीज आर मेटल्स, जिंक, लेड, जितने भी हमने किए एक्सेप्ट दिस। अमोनियम आयन जो है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स का है, बाकी सारे जितने भी आपने आयंस देखे दे ऑल आर मेटेलिक, और नॉन मेटल्स जनरली फॉर्म एनायंस। हाइड्राइड आयन, नेक्स्ट इज क्लोराइड, क्लोराइड आयन Cl negative. One thing you need to remember here while writing the names, name हम जब केटायंस का मेंशन करते हैं बेटा, तो हम जो मेटल का नेम है या जो एलिमेंट का नेम है उसके साथ आयन लिख देते हैं। एक्सेप्शन है जहां पे अगर वो डिफरेंट वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक है, तब उसके लिए आपको ये मेंशन करना है या फिर नंबर। अदरवाइज नॉर्मल सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, जो एलिमेंट का नेम है उसके आगे आयन लगा दो तो आयन का नेम बन गया। बट फॉर एनायंस the naming different is slightly मतलब different as compared to their names. क्लोरीन का नेम्स है, क्लोरीन का जो नेम है अदरवाइज Cl सिंबल we write as chlorine element, but its ion, anion जो ये बना रहा है, anions की जो ending है according to IUPAC system, IDE में end होता है या फिर ITE में ending होती है या फिर ATE में ending होती है, means the name of anions ends with IDE, ATE और ITE. These are the rules. जब भी आप एनायंस का नेम लिखोगे, ये देखो IDE एंड हुआ, क्लोराइड IDE से एंड हो रहा है। नेक्स्ट इज आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन इज I नेगेटिव, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन इज Br1 नेगेटिव। चार्जेस ध्यान से लिखना बेटा, ये कई बार आप बाय मिस्टेक रॉन्ग लिख लोगे, फिर लर्न जब करोगे तो भी रॉन्ग हो जाएंगे। इट्स बेटर इफ यू राइट करेक्टली। तो दीज आर मेनली नेगेटिवली चार्ज। वन मोर यू कैन राइट फ्लोराइड, वो मैं अभी मोनोएटॉमिक ही लिख रही हूँ ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग हियर। फ्लोराइड आयन इज F नेगेटिव। तो दीज 5 आर बेसिकली मोनोएटॉमिक anions having one charge। अब जो पॉलीएटॉमिक है उसके लिए मैं सेपरेट कॉलम बना दूं। नेक्स्ट इज ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव। क्लियर?
O2 negative is oxide ion. Sulfide. S2 negative. Sulfide ion is S2 negative. Then nitride ion. N2 negative. Have a look at this table. Here I have written all ions made up of a single type of atom, having a single atom in that. All are monoatomic anions और इन सभी की ending देखो IDE में हो रही है, ठीक है? Now we'll discuss polyatomic ions made up of different types of atoms. और उसमें आप देखोगे ending क्या आएगी फिर. तो उसमें एक तो सेम ही ending से हाइड्रोक्साइड, hydroxide ion, yes, polyatomic anions. No space is there, so I'm continuing from this side, but ये anions के अंदर ही आपने करना है. Polyatomic anions. You continue with this table. First one is hydroxide ion, OH negative. Hydroxide is made up of two atoms, oxygen and hydrogen, and the name given is hydroxide. तो hydroxide name से clear हो जाएगा, hydrogen and oxygen है. Symbol, formula is OH, 1 negative. एक ही valency है. Next is carbonate ion, CO3, 2 negative. Now the difference you can see. यहाँ आप एनायन की एंडिंग IDE में नहीं है, क्योंकि जनरली IDE में एंडिंग मोनोएटॉमिक आयन की होती है, एक इसको छोड़कर हाइड्रोक्साइड के लिए. अब जो आपके पास आयंस आप देखोगे ना बेटा, वो आयंस में जो मेन एलिमेंट है जिसका वो आयन है, जैसे हम कार्बोनेट आयन कर रहे हैं तो कार्बन होगा उसमें, कार्बन, बट साथ में ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है? तो ऐसे आयंस पॉलीएटॉमिक आयंस जिनमें मेन एलिमेंट के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उनकी जो एंडिंग होती है नेम्स की, उसमें आपको DE नहीं मिलेगा, रादर यू विल फाइंड TE देयर. ATE हो सकता है, ITE हो सकता है, दोनों होंगे, बट TE विल बी देयर, नॉट दैट DE. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. आपको नेम हम एग्जाम में क्या देते हैं, विल गिव यू अ नेम टू राइट फॉर्मूला, तो आपको नेम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फॉर्मूला ही रॉन्ग होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ द नेम एंड्स विद DE, IDE, then the anionic species will have only that particular element. ब्रोमाइड है तो ब्रोमीन का है, फ्लोराइड है फ्लोरीन का है, कार्बाइड है कार्बन है, नाइट्राइड है नाइट्रोजन है, in that way. But if the name is ending with TE, T फॉर टाइगर वाला, TE में एंडिंग है, तो उस केस में आपको ऑक्सीजन भी साथ में यूज कर रहा है. एक एक्सेप्शन है हाइड्रोक्साइड का, ठीक है? तो कार्बोनेट आयन, इट इज CO3, 2 नेगेटिव. एक है आपके पास हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इज HCO3 नेगेटिव. इसका एक और नेम भी पॉपुलर है, कॉमनली इट इज आल्सो कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट आयन. If it is mentioned bicarbonate or hydrogen carbonate, meaning is same. सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा अगर आपने कभी डेली लाइफ में घर में सब लोग यूज करते हैं केक वगैरह बनाने के लिए, तो दैट बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट. तो बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज, केमिकल नेम एक्चुअल जो है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बट इट इज आल्सो नोन एज बाइकार्बोनेट, ठीक है? फॉर्मूला है HCO3, चार्ज है 1 नेगेटिव. नेक्स्ट इज नाइट्राइट. अब ये D नहीं है, T है इसमें, और इसमें डिफरेंस देखो, दिस इज नाइट्राइड एंड हियर इट इज नाइट्राइट. If D is present then only nitrogen is there, but if T is present then
NO2 negative 1 charge. NO2 ऑक्सीजन कंपल्सरी है if the ending is there with ITE or ATE. अब ITE और ATE में एंडिंग कब आएगी, इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखो. कुछ जो पॉलीएटॉमिक आयंस जो सेम एलिमेंट से मिलकर के बन रहे हैं वो 2-3 टाइप के हो सकते हैं. तो अगर उसमें ऑक्सीजन का नंबर कम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडिंग आएगी वो ITE में आएगी. अब दूसरा देखो इसका नाइट्रेट. नाइट्रेट आयन, आयन सब पे लिखते जाना, मैं हर जगह स्किप कर रही हूँ. नाइट्रेट आयन, you can see the difference here. Nitrite ion have lesser number of oxygen, NO2 negative. Nitrate ion has greater number of oxygen, NO3. Charge is same, charge दोनों पे same है, nitrogen भी same है, only the difference is of oxygen which is combined with nitrogen. तो ये नाइट्रोजन की एक्चुअली डिफरेंट वैलेंसीज की वजह से, बट अभी के लिए आप इतना मेंशन कर सकते हो, with lesser number of oxygen, the name according to IUPAC is given by ending ITE. एंडिंग करोगे आप ITE में, तो नाइट्राइट आयन इज NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट आयन इज NO3 नेगेटिव. नाइट्राइट जो है ओनली नाइट्रोजन, N3 इसको 3 करना बेटा, सॉरी इट्स नॉट 2. नाइट्राइट आयन हैज चार्ज 3 नेगेटिव. नाइट्राइट आयन हैज 3 नेगेटिव चार्ज, मेक दिस करेक्शन. नाइट्रेट आयन NO3. IDE में एंडिंग है, ओनली एलिमेंट विल बी देयर. If the ending is in ITE or ATE, T आ रही है एंडिंग में, तो ऑक्सीजन साथ में होगी. That is to be important. और ये बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, हम नेम अगर पूछ रहे हैं सोडियम नाइट्राइड का, तो नाइट्राइड की जगह आप लोग नाइट्राइट लिख देते हो, क्योंकि सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, बट स्पेलिंग में डिफरेंस है. नाइट्राइड में DE है, नाइट्राइट इट इज TE. नेक्स्ट इज सल्फाइड. प्रॉब्लम ज्यादा आपको एनायंस को ही याद करने में आएगी. केटायंस आर इजी टू मेमोराइज, सिर्फ उनकी वैलेंसी डिफर कर रही है, बाकी तो नाम से ही है वो. सल्फाइड आयन इज SO3 2 नेगेटिव, चार्ज इज 2 नेगेटिव और फॉर्मूला है SO3. सल्फर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज कंपल्सरी, एंडिंग इज देयर इन ITE. अब आपने सल्फाइड देखा था बेटा, SULPHIDE, देन ओनली सल्फर इज देयर. ठीक है, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज है, देन सल्फाइड आयन. बट इफ यू आर राइटिंग सल्फाइड TE, then the symbol or formula is SO3 2 negative. One more is sulfate. सल्फेट आपने बहुत बार सुना भी है, कॉपर सल्फेट यूज करते हो लोअर क्लासेस में. फॉर्मूला पता है कॉपर सल्फेट का? CuSO4. Cu तो कॉपर है, उसमें सल्फेट SO4 होता है. तो सल्फेट आयन इज SO4 2 negative. Clear? Up to this, okay? A few more anions you need to mention. Again, I am writing here this side. Yes. Yes, beta. Next is permanganate, which is commonly you can use. Potassium permanganate is used as an you can say oxidant. वाटर को प्यूरिफाई करने में भी यूज होता है. आपने लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ा होगा. पोटेशियम परमैंगनेट सुना है किसी ने? KMNO4 और कॉमनली लाल दवाई भी बोलते हैं, जो टैंक्स वाटर टैंक्स में डाली जाती है डिसइंफेक्टेंट करने के लिए वाटर को, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू किल जर्म्स. तो परमैंगनेट आयन, परमैंगनेट आयन हैज अ फॉर्मूला MnO4 नेगेटिव चार्ज. मैंगनीज का ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन है, बिकॉज एंडिंग इज इन ATE. पर मैंगनेट इज ओके. जी ये ना, नहीं मैंगनेट मैंगनीज एलिमेंट से बना है. मैंगनीज के स्पेलिंग MANGANESU. इट्स मैंगनेट, मैग्नेट नहीं है. दैट इज तो सिंपल मैग्नेट हो जाएगा फिर ना. इट्स मैंगनेट. Permanganate ion MnO4 negative. One more you need to write, phosphate ion. Phosphate ion is PO4 3 negative. फॉस्फोरस एलिमेंट का आयन है ये. अगर सिंपली फॉस्फाइड आयन लिखा हुआ है, वैसे वो आपको अभी बुक में नहीं है, बट इफ यू वांट टू नोट डाउन फॉस्फाइड, तो आप वो मोनो एटॉमिक वाले में डाल सकते हो उसको.
फॉस्फाइड आयन सिर्फ P अकेला होता है और 3 नेगेटिव चार्ज होते हैं, बट फॉस्फेट आयन इज TO4 3 नेगेटिव। फॉस्फाइट भी होता है बट अभी आप छोड़ दो उसका, जितने आपको कॉमनली ज्यादा यूज करने हैं ना वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। TO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन। वन मोर यू कैन राइट peroxide आयन। इसमें एक्चुअली एक ही टाइप के एटम्स हैं बट नंबर ऑफ एटम्स आर मोर देन वन। O2 2 नेगेटिव। पर ऑक्साइड नेम कभी सुना होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जैसे वाटर लिक्विड है ना हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज ऑल्सो अ लिक्विड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। बट जितना वाटर हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अगर हम पी लें तो हमारी लाइफ नहीं चलेगी। इट्स नॉट लाइफ सपोर्टिंग। बना हुआ उन्हीं दोनों एलिमेंट से, क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर्टीज डिफर करते हैं। तो पर ऑक्साइड आयन आपको इसलिए मैंने रेफरेंस दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, दैट इज उसमें ये आयन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दीज आयंस आर सफिशिएंट। एक वो भी है डाइक्रोमेट, 10th में यूज होगा बट अगर आप चाहते हो तो नोट कर लो। 9th में हम उस पर जनरली नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, बट स्टिल यू कैन राइट दिस इन टेबल। डाइक्रोमेट। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम जैसे हमने अभी अनाइंस किए हैं एंड वी नो दैट उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गेन हो रहे हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव हो रहा है। मैम लाइक अगर पेरोक्साइड आयन है, जैसे वो 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन कर रहा है, तो पेरोक्साइड यस, तो फिर मैम अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी जैसे गेन कर सकता है जैसे called as dichromate ion. Di is 2, chromate अभी लिखना है CrO4 2 negative. Chromate है Cr2O7 2 negative. Dichromate ion Cr2O7 2 negative. Dichromate, chromium is a metal, उसका ये ऑक्सो एनायन है Cr2O7 2 नेगेटिव चार्ज। वन मोर एसिटेट। एसिटिक एसिड तो आपने टर्म सुना होगा, एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। उसमें जो आयन है ना एनायन, हाइड्रोजन आयन उसका केटायन है, और विनेगर में जो एनायन है दैट इज एसिटेट आयन CH3COO 1 नेगेटिव चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला, थोड़ा डिफरेंट है। 2 कार्बन एटम्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम, बट इट इज टू बी रिटन लाइक दिस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको लिखना इसी फॉर्मेट में पड़ता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला ये है CH3COOH। ये हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव आयन है इसमें, और ये एसिटेट आयन नेगेटिव है, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, बट आई एम राइटिंग हियर एसिटेट आयन, एंडिंग अगेन AT में है, ऑक्सीजन होगा जरूर, एंड फॉर्मूला is CH3COO 1 negative. This is acetate ion. This is also can be asked because acetic acid के salts आपको 10th में भी syllabus में है, ठीक है। तो you need to learn all of these ions with valence. difficult task है ये, easy नहीं है। और जब तक लेकिन ये आप learn नहीं करोगे ना, आपको 10th में chemistry first chapter से ही equations लिखने को आएंगे। So you will not be able to write chemical formula if you will not memorize these things.